Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English Learn It Yourself. So, this is the second part and second video on the chapter 1.5 The New Dress by Virginia Woolf from class 12th English. मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो स्टॉप हियर, गो वॉच द फर्स्ट पार्ट बिकॉज दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड इन कंटिन्यूएशन विद द फर्स्ट पार्ट. So, in the first part, we learned about the chapter, about the author, about the term stream of consciousness, and then we started reading and understanding the chapter line by line. So, let's not waste our time anymore and we'll pick up from where we left last. I feel like some dowdy, decrepit, horribly dingy old fly, she said, making Robert Hayden stop just to hear her say that. Just to reassure herself by furbishing a poor weak-kneed phrase and so showing how detached she was, how witty, that she did not feel in the least out of anything. And of course Robert Hayden answered something quite polite, quite insincere, which she saw through instantly, and said to herself, directly he went, again from some book, lies, lies, lies. For a party makes things either much more real or much less real, she thought. She saw in a flash to the bottom of Robert Hayden's heart. She saw through everything. She saw the truth. This was true. This drawing room, this self, and the other false. मुझे किसी सड़ी हुई कमज़ोर बूढ़ी मक्खी की तरह महसूस हो रहा है. मेबल ने रॉबर्ट हेडन को उसे ये कहते हुए सुनने के लिए रुकते हुए कहा. इस कमज़ोर से फ्रेज़ को कहकर खुद को झूठा दिलासा देने के लिए, झूठा दिखावा करने के लिए कि वो कितनी अलग है, कितनी मजाकिया है, कि उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा. और जाहिर है रॉबर्ट ने कुछ जवाब दिया जो काफ़ी विनम्र और काफ़ी इनसिंसियर यानी बनावटी था, जैसे उसने तुरंत पकड़ लिया. उसने खुद से कहा, फिर से किसी किताब से लिए गए शब्द, झूठ झूठ झूठ. एक पार्टी चीज़ों को या तो बहुत ज़्यादा रियल या बहुत कम रियल बना देती है, उसने सोचा. उसने एक झटके में रॉबर्ट हेडन के दिल की गहराई को देख लिया. उसने एक झटके में सब कुछ देख लिया. उसने सच देखा. ये सच था. ये ड्राइंग रूम और वो खुद और बाकी सब झूठ था. मिस मिलन्स लिटिल वर्क रूम वॉज रियली टेरिबली हॉट, स्टफी, sordid. It smelt of clothes and cabbage cooking, and yet, when Miss Millan put the glass in her hand and she looked at herself with the dress on, finished, an extraordinary bliss shot through her heart. Suffused with light, she sprang into existence. Rid of cares and wrinkles, what she had dreamt of herself was there, a beautiful woman. Just for a second. She had not dared look longer. Miss Millen wanted to know about the length of the skirt. There looked at her, framed in the scroppling mahogany, a grey-white, mysteriously smiling, charming girl, the core of herself, the soul of herself. And it was not vanity only, not only self-love that made her think it good, tender and true. मिस मिलन का छोटा सा वर्करूम बहुत ही गर्म, बिखरा हुआ और घिनौना था. इससे कपड़ों और पकती हुई गोभी की स्मेल आती थी. फिर भी जब मिस मिलन ने उसके हाथ में आईना रखा और उसने खुद को उस ड्रेस में देखा जो बिल्कुल तैयार थी, इसके दिल में अजीब सी खुशी की लहर दौड़ पड़ी. रोशनी से भरकर जैसे वो खुद के अस्तित्व में आ गई. चिंताओं और झुर्रियों से परे अपने आप के लिए उसने जो सपना देखा था वो उसके सामने था. एक खूबसूरत महिला, बस एक पल के लिए. उसने और देखने की हिम्मत नहीं की. मिस मिलन स्कर्ट की लंबाई के बारे में जानना चाहती थी, पर वहाँ उस महाग्नि के सजे हुए फ्रेम के आईने में ग्रे वाइट रहस्यमयी रूप से मुस्कुराती हुई आकर्षक लड़की जो उसका मूल्य थी, उसकी आत्मा थी, उसे देख रही थी. और ये सिर्फ उसका घमंड नहीं था, न केवल उसका आत्म प्रेम जिसने उसे अच्छा, कोमल और सच्चा सोचने पर मजबूर किया. मिस मिलन said that the skirt could not well be longer. If anything, the skirt, said Miss Millen, puckering her forehead, considering with all her wits about her, must be shorter. And she felt suddenly, honestly, full of love for Miss Millen,
much fonder of Miss Millen than of anyone in the whole world, and could have cried for pity that she should be crawling on the floor with her mouth full of pins and her face red and her eyes bulging, that one human being should be doing this for another. And she saw them all as human beings merely, and herself going off to her party, and Miss Millen pulling the cover over the canary's cage, or letting him pick a hemp seed from between her lips, and the thought of it, of this side of human nature, and its patience and its endurance, and its being content with such miserable, scanty, sordid little pleasures, filled her eyes with tears. मिस मिलन ने कहा कि स्कर्ट इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। हाँ, मिस मिलन ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, अपनी सारी बुद्धि से इसके बारे में सोचते हुए कि स्कर्ट को थोड़ा और छोटा होना चाहिए। और अचानक उसके दिल में मिस मिलन के लिए खूब सा प्यार उमड़ा। उसे उस वक्त मिस मिलन दुनिया की सबसे प्यारी इंसान लगी, इतना ज़्यादा कि शायद वो रो पड़ती जब उसने देखा कि कैसे वो पिंस मुंह में भरकर, सूजी हुई आंखें, लाल चेहरा लिए ज़मीन पर उसके ड्रेस के चक्कर में रेंग रही है। कैसे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतना कुछ कर सकता है? और उसने उन सभी को सिर्फ इंसानों के रूप में देखा, और वो खुद तो पार्टी में जा रही थी, मगर मिस मिलन उनको कैनरी के पिंजरे पर से कवर हटाते देखा, उसे अपने होठों के बीच रख कर दाने खिलाना, ये सब, और ये सोच के इंसान के नेचर का ये भी एक पहलू है, धैर्य और धीरज से भरा, और इसका सब्र, जो उसे ऐसे दुखी, कमियों से भरे जीवन में भी छोटी छोटी खुशियों से संतुष्ट रखता है। इस सोच ने उसकी आंखों में आंसू भर दिए। एंड नाउ द होल थिंग हैड वैनिश्ड। The dress, the room, the love, the pity, the scrolloping looking glass in the canary's cage, all had vanished. And here she was in a corner of Mrs. Dalloway's drawing room, suffering tortures, woken wide awake to reality. But it was all so paltry, weak-blooded, and petty-minded to care so much at her age with two children, to be still so utterly dependent on people's opinions and not have principles or convictions. Not to be able to say as other people did, "There's Shakespeare, there's death. We're all weevils in a captain's biscuit," or whatever it was that people did say. She faced herself straight in the glass. She pecked at her left shoulder. She issued out into the room, as if spears were thrown out at her yellow dress from all sides. और अब सब कुछ गायब हो गया था। ड्रेस, रूम, प्यार, दया, सजा हुआ आईना, कैनरी का पिंजरा, सब कुछ गायब हो गया था। और यहाँ वो मिसेस डैलोवे के ड्राइंग रूम के कोने में खड़ी रियलिटी से जाग कर यातना झेल रही थी। लेकिन इस उम्र में 2 बच्चों के साथ कितना बेवकूफ़ था। इसका दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर होना, बिल्कुल भी कोई सिद्धांत या विश्वास ना होना, दूसरे लोगों की तरह ये ना कह पाना कि जहाँ शेक्सपियर है तो वहाँ मौत भी तो है, हम सब एक कैप्टन के बिस्किट में लगे घुन की तरह हैं, या जो भी लोग कहते हैं। उसने सीधे सीधे आईने में खुद का सामना किया। वो कमरे में बाहर निकली, मानो उसकी येलो ड्रेस पर चारों ओर से भाले फेंके जा रहे हों। But instead of looking fierce or tragic as Rose Shaw would have done, Rose would have looked like Boadicea. She looked foolish and self-conscious and simpered like a schoolgirl and slouched across the room, positively slinking as if she were a beaten mongrel, and looked at a picture, an engraving, as if one went to a party to look at a picture. Everybody knew why she did it. It was from shame, from humiliation. Now the fly is in the saucer, she said to herself, right in the middle, and can't get out, and the milk, she thought, rigidly staring at the picture, is sticking its wings together. It's so old-fashioned, she said to Charles Pert, making him stop, which by itself he hated, on his way to talk to someone else. She meant, or she tried to make herself think that she meant that it was the picture and not her dress that was old-fashioned. मगर जुझारू या दुखद दिखने के बजाय जैसे रोज शॉ लगती, रोज बोडेसिया जैसे लगती। बोडेसिया एक ब्रिटिश क्वीन थी एक्चुअली, जो बहुत पावरफुल थी और दिखने में बहुत ही फियर्स थी, जुझारू थी। तो उसे ऐसे लगता है कि अगर इसकी जगह पे रोज शॉ होती तो वो बहुत जुझारू होती, लेकिन वो ऐसे नहीं थी। वो मूर्ख और स्टूपिड और नर्वस लग रही थी, एक स्कूल गर्ल की तरह, जिसे रूम में पिटे हुए मॉन्ग्रेल की तरह चल रही थी। उसने रुककर एक पिक्चर को देखा, जो कि एक एंग्रेविंग थी, जैसे कोई भी पार्टी में पिक्चर को देखने ही जाता है। हर कोई जानता था वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके ये सब करने की वजह शर्म और अपमान था जो वो महसूस कर रही थी। अब मक्खी सॉसर में है, उसने खुद से कहा, सॉसर के बिल्कुल बीच में,
और अब वो बाहर नहीं निकल सकती। और दूध, पिक्चर को घूरते हुए उसने सोचा, दूध उसके पंखों को चिपका रहा है। ये बहुत पुराने ज़माने का है, उसने चार्ल्स बर्ट को कहा, जिससे वो रुक गया। वो किसी और से बात करने जा रहा था और उसे ऐसा करना पसंद नहीं था। इसका मतलब था, या फिर उसने खुद को सोचने की, खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि ये पिक्चर ओल्ड फैशन है, ना कि उसका ड्रेस। एंड वन वर्ड ऑफ प्रेज, one word of affection from Charles would have made all the difference to her at the moment. If he had only said, "Mabel, you're looking charming tonight," it would have changed her life. But then she ought to have been truthful and direct. Charles said nothing of the kind, of course. He was malice itself. He always saw through one, especially if one were feeling particularly mean, paltry, or feeble minded. "Mabel's got a new dress," he said, and the poor fly was absolutely shoved into the middle of the saucer. Really, he would like her to drown, she believed. He had no heart, no fundamental kindness, and only a veneer of friendliness. Miss Millen was much more real, much kinder. और तारीफ का एक लफ्ज़, चार्ल्स का स्नेह से भरा एक लफ्ज़ इसके लिए इस वक्त बहुत मायने रखता था। इसका सिर्फ इतना कहना कि मेबल, आज आप बहुत आकर्षक लग रही हैं, इसकी ज़िंदगी बदल देता। लेकिन उसे सीधा और सच्चा होना था। चार्ल्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो खुद कड़वाहट से भरा हुआ था। वो हमेशा सबको परख लेता था, ख़ास तौर पर अगर कोई मतलबी, कमज़ोर या कमतर महसूस कर रहा हो। मेबल ने नया ड्रेस पहना है, उसने कहा, और उसके साथ ये बेचारी मक्खी बिल्कुल सॉसर के बीच में धंस गई। सच में वो तो चाहेगा कि वो डूब जाए, मेबल मानती थी। इसके पास दिल ही नहीं है, कोई नरमाहट नहीं है, बस मित्रता का एक चोला है जो वो पहना है। इस मुकाबले में मिस मिलन ज़्यादा रियल और दयालु थी। If only one could feel that and stick to it always. Why? She asked herself, replying to Charles much too pertly, letting him see that she was out of temper, or ruffled, as he called it. Rather ruffled, he said, and went on to laugh at her with some woman over there. Why? She asked herself. Can't I feel one thing always, feel quite sure that Miss Millen is right and Charles wrong, and stick to it? Feel sure about the cannery and pity and love, and not be whipped all round in a second by coming into a room full of people? It was her odious, weak, vacillating character again, always giving at the critical moment, and not being seriously interested in conchology, etymology, botany, archaeology, cutting up potatoes and watching them fructify like Mary Danis, like Wallet Searle. काश हम एक ही चीज़ फील कर पाते और इसी पर टिके रहते हमेशा, उसने चार्ल्स को तीखा सा जवाब देते हुए खुद से ही पूछा, ताकि उसे पता चले कि उसे बुरा लगा है। गुस्सा आ गया, उसने कहा, और किसी औरत के साथ उस पर हंसने के लिए रूम की दूसरी ओर चला गया। क्यों? क्या मैं हमेशा एक ही चीज़ महसूस नहीं कर सकती? पक्का महसूस नहीं कर सकती कि मिस मिलन सही है और चार्ल्स गलत? और इसी पर टिकी रहूं, भरोसा रखूं कैनरी पर, दया पर, प्यार पर, और ठुकराई ना जाऊं एकदम से एक पल में लोगों से भरे कमरे में आकर? ये उसका घिनौना, कमज़ोर, दोगला चरित्र ही था जो हमेशा उसे ऐसे मौक़ों पर फिसल जाता, और जिसे कॉन्कोलॉजी, एटमोलॉजी, बॉटनी, आर्कियोलॉजी, आलू कटते हुए, फूलते हुए देखने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, जैसे कि मैरी डेनिस और वायलेट सर्ल को था। Then Mrs. Holman, seeing her standing there, bore down upon her. Of course, a thing like a dress was beneath Mrs. Holman's notice. With her family always tumbling downstairs or having the scarlet fever, could Mabel tell her if Amthorpe was ever let for August and September? Oh, it was a conversation that bored her unutterably. It made her furious to be treated like a house agent or a messenger boy, to be made use of, not to have value. That was it, she thought, trying to grasp something hard, something real, while she tried to answer sensibly about the bathroom and the south aspect and the hot water to the top of the house, and all the time she could see little bits of her yellow dress in the round looking glass which made them all the size of boot buttons or tadpoles. तभी मिसेस होलमैन ने उसे वहाँ खड़ा देख उस पर टूट पड़ी। बेशक मिसेस होलमैन की नज़र में एक ड्रेस जैसी चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती थी, जबकि उसकी फैमिली में हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसकी फैमिली में हमेशा कोई सीढ़ियों से गिर रहा होता है, तो किसी को स्कारलेट फीवर होता है। क्या मेबल उसे बता सकती थी कि एमथॉप को कभी अगस्त और सितंबर पे रेंट के लिए दिया गया था? इस बातचीत ने उसे बुरी तरह बोर कर दिया था। उसे एक हाउस एजेंट या मैसेंजर की तरह ट्रीट किया जाना उसे गुस्सा दिला रहा था, जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाए और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसने यही सोचा,
कुछ अहम कुछ ठोस बात समझने की कोशिश करते हुए उसे समझदारी से बाथरूम, साउथ एस्पेक्ट और घर के टॉप पर गर्म पानी के बारे में जवाब देने की कोशिश कर रही थी, और इस पूरे समय गोल आईने में दिखने वाले अपने येलो ड्रेस को देख रही थी। इस आईने में दूर से सब के सब बूट बटन और टैटपोल के साइज के ही दिखाई दे रहे थे। And it was amazing to think how much humiliation and agony and self loathing and effort and passionate ups and downs of feeling were contained in a thing the size of a three-penny bit. And what was still odder, this thing, this Mabel Waring, was separate, quite disconnected. And though Mrs. Holman was, the black button was leaning forward and telling her how her eldest boy had strained his heart running, she could see her, too, quite detached in the looking glass, and it was impossible that the black dot leaning forward, gesticulating, should make the yellow dot sitting solitary, self centered, feel what the black dot was feeling, yet they pretended. So impossible to keep boys quiet. That was the kind of thing one said. और ये काफ़ी आश्चर्यजनक था कि 3 पैसे की चीज़ में कितना अपमान, कितनी पीड़ा, कितनी आत्मघृणा, कितना प्रयास, भावना और भावुक उतार चढ़ाव शामिल थे। और जो बहुत बहुत अजीब थी वो ये मेबल वॉरिंग, वो काफ़ी अलग, काफ़ी डिटैच थी। हालांकि मिसेस होलमैन आगे झुककर ये बता रही थी कि कैसे उसके बड़े बेटे ने भाग भाग कर अपने दिल को कमज़ोर कर लिया है। मेबल उन्हें भी आईने में देख सकती थी, और ये नामुमकिन था कि ये ब्लैक डॉट, यहाँ पे इसका मतलब है मिसेस होलमैन, आगे झुकते हुए, इशारे करते हुए अकेले बैठी सेल्फ सेंटर्ड येलो डॉट यानी कि मेबल वॉरिंग को ये सब कुछ महसूस कराए जो वो खुद महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने नाटक किया। लड़कों को शांत रखना कितना मुश्किल है, इस तरह किसी ने कहा। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई नो लर्नर्स, आई अंडरस्टैंड कि मैं लाइंस रीड करके एक्सप्लेन कर रही हूँ सिर्फ लाइंस के मीनिंग्स को, और इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी। आपको बिल्कुल भी सोचने की, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट। तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं एंड में आपको पूरे चैप्टर की समरी बहुत शॉर्ट में पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। सो डोंट वरी एट ऑल, and I hope that you are enjoying learning with me. And if you like this video, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.